So hi guys, I hope you all are doing great. And last video I uploaded about the CA Foundation result reaction and I scored 305 marks without any tuitions or coachings in my first attempt. So I prepared for my exams entirely by self-study. That's why many of you were asking about how did I prepare for my exams and which books I used, how many number of hours I used to study and what was my revision criteria, and all those questions I'm gonna answer in this video. This video is going to be a bit lengthy because in this video I'm gonna share each and every part about my strategy, about my strategy, about my strategy. यार भाव समझ जाओ यार, अगर तुम मेरे सच्चे भक्त हो तो भाव समझ जाओ कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ. About my strategy, okay? And at the end of the video, I'm gonna share a bonus tip with you. So stay tuned. Which study material did I follow? So talking about me, I followed only and only ICAI study material. What I used to do was I used to solve all the practical questions, all the illustrations, examples, true false, MCQs and whatever it is. I used to solve each and every question from the ICAI books, those 7 books which were given to me by the institute. Except those books, I did not even touch a single extra book. I did not even purchase an MCQ compiler. So if your target is to achieve a decent score like mine or just to pass the examinations, then ICAI study material is more than sufficient. Make sure that you are studying the correct syllabus, okay? वैसे तो मुझे पता है कि तुम लोग बहुत बड़े लोग हो, तुम्हारे पास टाइम की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, बहुत काम धंधे हैं तुम लोगों को, लेकिन फिर भी टेक सम टाइम आउट ऑफ योर बिजी स्केड्यूल उन टॉपिक्स को देखने के लिए दैट आर इन योर सिलेबस एंड मेक श्योर दैट तुम कोई डिलीटेड टॉपिक को स्टडी नहीं कर रहे हो, ओके? एंड अगर वेले हो तो कर सकते हो डेफिनेटली. हाउ मेनी नंबर ऑफ आवर्स आई स्टडीड? So before telling this, let me tell you how I used to study. So when I entered into CA Foundation, I started with all the 4 subjects. So I used to study all the 4 subjects daily. So first I used to watch the YouTube lectures. If you want to know which YouTube channels I followed for my preparations, then you can tell me in the comment section. I'll make a separate video on that. So let's come to the point. First I used to watch all the YouTube lectures and at the end of the day, I used to revise all the concepts that I studied in that day. So in this way, my revision kept going on parallel with my syllabus. So वैसे कहा जाता है कि if you are appearing for November attempt, then you must have completed your syllabus by 30th September. But I was able to complete my syllabus by 30th August. Yes, it's right. So reason भी सुन लो फिर. काम धंधा मेरे को करना नहीं होता, बर्तन मेरे को मांजने नहीं आते, कॉलेज में जाती नहीं हूँ, बस ये मेरा ये वाला पोर्शन है, बस यहीं बैठे रह के पढ़ाई करना होता है बस. दैट्स वाई वेली तो मैं बहुत हूँ यार, मतलब तुम लोग तो बड़े बिजी लोग हो बट मैं बहुत वेली हूँ. दैट्स वाई मेरा सिलेबस टाइम से पहले कंप्लीट हो गया था एंड उसके बाद मैंने स्टार्ट कर दी थी अपनी रिविजन्स, RTPs, MTPs. आई एम गोना टॉक अबाउट देम लेटर इन द वीडियो. So let's come to the point. How many number of hours I used to study? So it was never fixed. Sometimes मेरा मूड अच्छा होता था तो मैं 10-10 घंटे भी पढ़ाई कर लेती थी. But sometimes I used to study only 3 to 4 hours daily. And you know, 1 to 2 months before exams, I never studied for more than 4 hours because my syllabus and all RTPs, MTPs were already completed. But talking about average, then I used to study 6 to 7 hours daily. It totally varies from person to person, okay? Effective study is more important than the number of hours. Did I prepare any notes? So yes, I prepared notes for 3 subjects which are accounts, maths and economics by watching the YouTube lectures. And what about law? Law के लिए मुझे already बना बनाया माल मिल गया था टेलीग्राम से. So मुझे कलरफुल नोट्स का एक PDF मिल गया था जिसमें सभी चैप्टर्स इंक्लूडेड थे एंड आई रेड द लॉ बुक ओनली 1 टाइम. उसके बाद मैंने जितनी भी रिविजन्स करी थी सिर्फ उन्हीं नोट्स से करी थी लॉ के लिए. एंड इफ़ यू वांट दैट नोट्स आई कैन शेयर इट विद यू. एंड वन मोर थिंग, sometimes we are confused that should we solve those additional questions in maths or not. So talking about me, मैंने additional questions सिर्फ एक चैप्टर के किए थे which was time value of money chapter number 4. Apart from this, I did not do additional questions of any chapter. So if you want to skip additional questions, you can definitely skip, but don't forget to practice previous year questions. Which test series I purchased? सो आई परचेज CA टेस्ट सीरीज़ जिसमें सभी चैप्टर्स का एक एक टेस्ट था और हर सब्जेक्ट में 2 फुल सिलेबस टेस्ट थे. सो इन दिस वे आई गेव 8 फुल सिलेबस टेस्ट जिसकी वजह से मेरी रिटन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई थी और मेरा एग्ज़ाम भी
टाइम से पहले कंप्लीट हो गया था. इवन माई अकाउंट्स एग्ज़ाम गॉट completed 30 minutes before the time, and my maths exam got completed 20 minutes before actual time. So that's the reason written practice is very much important. How many revisions I did? So as I told you कि मैं बहुत वेली थी, तो I was able to do 4 to 5 revisions of each subject before exams. Sometimes we tend to ignore revisions because हम सोचते हैं कि यार पहले syllabus complete कर लेते हैं, उसके बाद revision start करेंगे. But this is the biggest mistake which you are doing. Revision is necessary along with completing your syllabus. And one more tip I'm gonna share about revision. मैं जब भी revision करती थी, suppose let's take example of accounts. So I'm preparing a chapter in accounts, okay? So suppose there are 50 questions. फर्स्ट टाइम जब मैं उस चैप्टर को रिवाइज करूँगी, आई विल क्रॉस सम क्वेश्चंस जो कि मैं नेक्स्ट टाइम बिल्कुल भी नहीं करूँगी. सो इन दिस वे जब मैं नेक्स्ट रिवीजन करूँगी तो मेरे पास कंपैरेटिवली कम क्वेश्चंस होंगे सॉल्व करने के लिए. एंड उस रिवीजन में भी मैं बहुत सारे क्वेश्चंस को कट कर दूँगी जिन्हें मैं कभी देखूँगी भी नहीं दोबारा. इस तरीके से करके आई यूज़ टू रिड्यूस द कंटेंट ईच टाइम आई रिवाइज द चैप्टर. सो इन दिस वे एग्जाम टाइम तक ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि आई वॉज एबल टू रिवाइज इवन द बिगर चैप्टर्स इन अकाउंट्स लाइक NPO पार्टनरशिप इन लेस देन 30 minutes. सो वट आई वॉन्ट टू से इज रिड्यूस द कॉन्टेंट ईच टाइम यू रिवाइज अ चैप्टर. RTPs, MTPs. So if you don't know what are these, RTP refers to revision test papers and MTP refers to mock test papers. So basically ये सब अवेलेबल होता है ICAI की ऑफिशियल वेबसाइट पे. सो वट आई यूज़ टू डू वॉज आई यूज़ टू टेक प्रिंट आउट ऑफ इट. और ये देखो ये सभी है फोटो कॉपीज़. इतने सारे RTPs MTPs मैंने सॉल्व किए थे अपने एग्जाम से पहले. आई स्टार्टेड सॉल्विंग द RTPs आफ्टर completing my syllabus and MTPs are released by ICAI 1 or 2 months before exams. So I solved 2 mock test papers of each subject. और मैंने मॉक टेस्ट पेपर को जस्ट गो थ्रू नहीं किया था. आई सेट अ प्रॉपर टाइमर ऑफ 3 hours. और जैसा हम एग्ज़ाम में करते हैं, लाइक एग्ज़ाम में हम प्रॉपर 3 hours के लिए बैठते हैं और हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है, उसी तरीके से मैंने अपने सभी मॉक टेस्ट पेपर्स को सॉल्व किया था, जिसकी वजह से रिटन प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाती है और कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है एग्ज़ाम्स के लिए. सो इन दिस वे मैंने बहुत सारे RTPs MTPs को भी सॉल्व किया था. और ये सब कंटेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ ICAI वेबसाइट इज़ इनफ. आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारी बुक्स आती हैं जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस वगैरह होते हैं, बट यार क्यों उन बुक्स पे पैसे वेस्ट करने हैं जब ये सब कंटेंट फ्री में अवेलेबल है. ओके, सो टेक एडवांटेज ऑफ इट. टॉकिंग अबाउट टाइम टेबल, तो मैंने टाइम टेबल कभी बनाया नहीं था बिकॉज फ्यूचर इज़ वेरी अनसर्टेन. कई बार ऐसा होता है कि हम 1 week का या 1 month का टाइम टेबल बना तो लेते हैं बट we are not able to implement it. That's why I used to make my to-do list. When I was finished with my all day's work, then I used to make a to-do list for the next day. और उस to-do list में सिर्फ पढ़ाई के टारगेट्स नहीं होते थे, उसमें और भी बहुत सारी फन एक्टिविटीज़ होती थी. So yes, I would recommend you to make a to-do list instead of a timetable. Talking about the bonus tip and the most important point, time management. सो मैंने आपको बताया कि आई यूज़ टू प्रिपेयर अ टू डू लिस्ट डेली. सो मेरी टू डू लिस्ट में सिर्फ स्टडी के टारगेट्स नहीं होते थे. आई यूज़ टू इनकॉर्पोरेट अदर फन एक्टिविटीज़ एज वेल, दोज थिंग्स विच प्रोवाइडेड मी जॉय एंड विच यूज़ टू रेंडर मी स्ट्रेस फ्री. सो अ टिपिकल टू डू लिस्ट in my day consisted like this. As you can see, there are study targets also and other things also like workout, singing, shooting YouTube video and other things. And let me tell you one more thing. मैंने अपना 100% सिलेबस फिनिश नहीं किया था. मैंने फाउंडेशन के स्टार्टिंग में ही प्लान बना लिया था कि आई वुड कंप्लीट ओनली 80% ऑफ द सिलेबस, लेकिन जो मैं सिलेबस करूँगी उसे बहुत अच्छे से करूँगी. एंड दिस वॉज व्हाट आई डिड. सो मैंने मैथ्स में भी 4 to 5 चैप्टर्स स्किप किए थे. अकाउंट्स में भी मैंने 2-3 टॉपिक्स लाइक कंसाइनमेंट, अकाउंट करंट, एवरेज ड्यू डेट, ये बिकॉज ये टॉपिक्स मुझे थोड़े से डिफ़िकल्ट लगते थे. सो दैट्स वाई आई स्किप दिस टॉपिक्स. सो अगर आपको लग रहा है कि आपसे सारा का सारा सिलेबस नहीं हो पाएगा, सो डोंट वरी. आप जितना सिलेबस करके जा रहे हो ना, बस उसे अच्छे से करके जाओ कि अगर उतने सिलेबस में से कोई भी क्वेश्चन आ गया सो यू वोंट स्किप दैट. ओके, आई वांट टू एडवाइस यू कि यार सिर्फ पढ़ाई ही करते मत रह जाना. ज़िंदगी में जो चीज़ें करना तुम्हें पसंद है, अगर तुम्हें नाचना पसंद है तुम नाचो, तुम्हें खेलना पसंद है तुम खेलो, अगर तुम्हें गाना गाना पसंद है तुम गाना गाओ. बट जो चीज़ें करके तुम्हें खुशी मिलती है, जिससे तुम मोटिवेटेड होते हो, वो काम ज़रूर करो बिकॉज दीज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. ऑफ कोर्स स्टडी इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट स्टडी में इतने भी ज़्यादा मत उलझ जाना कि तुम बाकी एक्टिविटीज़ को टाइम ही ना दे पाओ बिल्कुल भी. ऑफ कोर्स स्टडी का बर्डन नहीं कह सकते बिकॉज यू नो जब मैंने CA कोर्स में एंटर किया था मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी. आई वॉज टू मच एक्साइटेड. एंड
वो जो एक्साइटमेंट लेवल था वो अनटिल लास्ट मोमेंट वो वैसा ही रहा था। इवन जब मैं एग्ज़ाम देने गई थी तब भी मेरा एक्साइटमेंट लेवल वैसा ही था जैसा मेरा स्टार्टिंग में होता था। ऑफ कोर्स मेरी स्टडी रूटीन में फ्लक्चुएशंस आते थे। समटाइम्स माई मूड यूज टू बी लाइक दिस एंड समटाइम्स लाइक दिस, और कभी कभी पढ़ने का मन नहीं भी करता था, कभी कभी रिपीटेड थिंग्स पढ़ के मतलब इतना बोरिंग फील होता था। बट डोंट वरी, बिकॉज ये हमें भी पता है कि हम CA क्यों कर रहे हैं, बिकॉज वी वॉन्ट टू अचीव समथिंग बिग इन लाइफ। और अगर दूसरों से डिफरेंट बनना है तो सेक्रीफाइसेस भी करने पड़ेंगे, है ना। बट आई नेवर फेल्ट CA एज अ बर्डन। 12th तक की स्टडीज़ मुझे कभी कभी बर्डन लगती थी, कभी कभी क्या ज़्यादातर मुझे बर्डन ही लगती थी। बट CA फाउंडेशन में मुझे आज तक कोई भी चीज़ ऐसी बर्डन एज सच बर्डन नहीं लगी, बिकॉज मुझे पता है कि यार हम CA कर रहे हैं तो हम अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए बस यही चीज़ के साथ अपने आप को मोटिवेटेड रखो हमेशा कि हम CA क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हमें कुछ बनना है। और इसे बर्डन मत समझना, बिकॉज इट्स नॉट अ बर्डन। ये वो चीज़ है जो हम एक्चुअल में बनना चाहते हैं। तो अगर तुम्हें ज़िंदगी में एक रिस्पेक्टफुल पर्सन बनना है, रिस्पेक्ट अर्न करनी है, जो तुम्हारी अभी है नहीं, पता है मेरे को, है मेरी भी नहीं, तो लगे रहो, मेहनत करते रहो। आशीर्वाद मेरा तुम्हारे साथ है ही। तथास्तु और बेस्ट ऑफ लक।